हाँ सुन लो। आप लोग आइए, प्रोजेक्टर को ऑन करो। प्रोजेक्टर को ऑन करो। हाँ प्रोजेक्टर का वायर कंट्रोल कर लेना। हाँ सब बच्चियां कहाँ? आगे आइए ना, वन बाय वन एक एक करके प्रेजेंट कीजिएगा ना। सब लोग शांत हो जाइए, सुनिए। सब लोग शांत हो जाइए, कह रहे हैं प्रोडक्शन के बाद। देखा है आता है। इधर से ही रहो। बोलो बोलो। सुनो उसकी बात पहले, अपनी बात सुनाई जाती। चल रहा है क्या? छोड़ दो, छोड़ो, बोलते दो। आवाज नहीं आ रहा In trading, secondary memory and main memory are divided into equal fixed site partitions. The partitions of secondary memory are called as pages.
The partitions of main memory are called as frames. Each process is divided into parts where size of each part is the same as page size. The size of the last page may be less than the page size. The page of processes are stored. The page of processes are stored in the frames of main memory depending upon their ability. My next number is My topic is why paging is used. Paging is used for faster access to data when a program either page is available in the main memory as the operating system copies a number of pages from your storage device to the main memory. Paging allows the physical address space of a process to be non-contiguous. Advantage of paging easy to use memory writing addresses. No need for external communication for everything easy to print. Any size pages and page size. नहीं तो जाओ Additional memory, multi-level programming, paging may lead to memory defense over. Segmentation is another technique of non-contiguous memory allocation. It is different from paging as paged and physical in nature. Segmentation, each part is known as a segment which can be allocated to a process. Segmentation gives users view of the process which paging does not give. Here the user's view is mapped to physical memory. Segmentation can be divided into two types: virtual memory segmentation and simple memory segmentation. That's all. ये बोल रही है इसमें डिफरेंस पूछ लो का पेजिंग सेगमेंटेशन का साइड से जस्ट बात को देखो बंदे समझ में आ जाएगा Hello everyone, I am Rupali Kumari. Today I will discuss about difference between paging and segmentation. First of all, paging and segmentation is the method. Paging and segmentation is the method. It is a regular copy. Paging and segmentation is the method which a process will divide it into parts and then paging is the fixed block size and segmentation is the variable size. Paging में fixed block size होता है, means paging का जो size होता है प्रोसेस के अंदर वो fixed होता है, segmentation का size जो होता है वो different होता है. Second is paging is the hardware device the page size and segmentation is the specified by user. Paging जो है वो हार्डवेयर के द्वारा डिसाइड किया जाता है and segmentation जो है वो यूजर के द्वारा डिसाइड किया जाता है. The paging technique is the faster memory access. Paging techniques में होता है कि वो memory access को faster access करता है and segmentation में वो slower access करता है memory को. Paging table stores the page data and segmentation table is store the segment data. And last is the it may be lead internal fragmentation and segmentation may be lead to external fragmentation. External fragmentation and internal fragmentation. Internal fragmentation वो होता है जो कि अगर किसी भी प्रोसेस में हम मेमोरी देते हैं तो वहां पे स्पेस बच जाता है, उसे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं. और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन वो होता है अगर किसी भी प्रोसेस में मेमोरी दे रहा है तो वहां पे जो
प्रोसेस फुलफिल नहीं करता है उसे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर। आपका क्या टॉपिक है? हाँ, मेरा क्वेश्चन चलेगा 5 राउंड 5 मिनट। नहीं तो है, हाँ तुम बताओ, पेजिंग होता है यूजर व्यू या सिस्टम व्यू? पेजिंग यूजर व्यू होता है या सिस्टम व्यू? सेगमेंटेशन, वेरी गुड, बैठो। और तुम फिर उसके बगल में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसमें जनरेट होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसमें जनरेट होता है? पेजिंग में इंटरनल होता है और फ्रेगमेंटेशन में अब आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? जैसे हम लोग जैसे 100 MB का कोई मेमोरी है और अगर उसमें 80 MB तक का कोई प्रोसेस डालते हैं तो 20 MB स्पेस बचा, वही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभिषेक, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? अच्छा, तुम पीछे, व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? बैठिए, उसको इस तरफ। कॉम्पैक्शन क्या है? कॉम्पैक्शन तो तुमको क्वेश्चन रेज करना चाहिए था ना, जब ये बोल रहे थे पेजिंग सेगमेंटेशन के बारे में, तो आपको पूछना चाहिए था। में ये बताइए कॉम्पैक्शन क्या, प्लीज बैठ जाइए। आप बताइए कॉम्पैक्शन क्या है? इंटरनल सेगमेंटेशन करते हैं तो जब बहुत सारे कौन सा करते हैं? कॉम्पैक्शन एक्सटर्नल में यूज होता है या इंटरनल में होता है? वेरी गुड, आगे बोलो। कॉम्पैक्शन जब बहुत सारे सेगमेंट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे मेमोरी जो होती है एक्स्ट्रा बच जाती है, उसी को हम एक जगह स्टोर करते हैं, उसे कॉम्पैक्शन स्टोर नहीं करते हैं, क्लब करते हैं। क्लब मतलब करके एक जगह बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, ओके। वो लास्ट बेंच क्या नाम है उसका? पेजिंग में पेजेस क्या सेम साइज का होता है, डिवाइडेशन की डिफरेंट साइज का? पेजिंग में सर सेम साइज का होता है सर, सेगमेंटेशन में डिफरेंट साइज का होता है। किस आधार पे होता है सेम साइज या किस आधार पे होता है डिफरेंट साइज, ये बताइएगा। हार्डवेयर के अनुसार होता है। सोर्स कोड के हिसाब से होगा ना, हार्डवेयर के हिसाब से कैसे होगा? मतलब 200 लाइन का कोड है तो उसको 5 भाग में बांट रहे हैं तो 40-40 लाइन सब सेगमेंट में चला जाएगा। अब फंक्शन के हिसाब से बना रहे हैं, 5 फंक्शन है प्रोग्राम का, मेन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फंक्शन के हिसाब से बनेगा, बैठ जाएगा। और आप पेज और फ्रेम में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेज एंड फ्रेम? बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ दिए हम तुमसे। एग्जाम में आ जाएगा, जानते हुए नहीं लिख पाता स्टूडेंट। जानते हो होता है एग्जाम में कि जानते हुए नहीं लिख पाता, जान रहा है कि चीज क्या है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही उसको भारी पड़ जाती है एग्जाम के समय में। जान फ्यूज, बैठ जाओ। पेज और फ्रेम में क्या अंतर है? सुनना ढंग से सब बच्चे। पेज और फ्रेम, एक सेगमेंटेशन में क्रिएट होता है और एक पेजिंग में, और एक का साइज मतलब इक्वली रहता है और एक का अनइक्वल रहता है। और नंबर ऑफ पेज और नंबर ऑफ जो एट द टाइम ऑफ प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना, तो फ्रेम का हर एक फ्रेम को एक पेज एलोकेट किया जाता है। नंबर ऑफ पेजेज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स, इस चीज को याद रखिएगा आप। ठीक है, अब आइए, क्या नाम है? जीवन। हाँ हाँ, एक चीज और, ये आप पेजिंग और सेगमेंटेशन में कंटीन्यूअस कौन है, नॉन कंटीन्यूअस कौन है? कौन सा? पेजिंग बोले तुम पेज बोले जा रहे हो। पेजिंग नॉन कंटीन्यूअस है, प्रिया बता के गई। She told that paging is a non-contiguous memory। सारे बच्चों ने सुना, आप शायद अपडेट आए हो।
सेगमेंटेशन कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है? ठीक है जीवन आओ इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब जहां मेमोरी ब्लॉक, जैसे एक मेमोरी ब्लॉक है मतलब 0 से 1000 MB है, कंटिन्यूअस है, उसको कहीं ब्रेक बीच में नहीं। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब 0 से 10 आपको दिए, 10 से 20 उसको दिए, 20 से 40, मतलब मेमोरी का बीच बीच में डिवाइडेशन हो जाना रैम का। लेकिन नॉन कंटिन्यूअस से ज्यादा चलता है। और क्या जीवन आ जाओ। और यू विल आस्क, मैं पूछूंगा जीवन के प्रेजेंटेशन के बाद डेडलॉक के क्वेश्चन आप सारे, नहीं आपसे सारे बच्चों से, इसलिए सारे बच्चे आप पूछ सकते हैं कि कहाँ आपको डाउट है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक पेजिंग सेगमेंटेशन में 15 से 20 नंबर आता है एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी का होता है। चलिए आइए, सब लोग को जो भी डाउट है प्लीज आप ऐसा नहीं कि लापरवाही कर दीजिएगा। आप बाद में पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाते, ये अच्छी बात है। Good morning, friends. I am Jivan Mishra along with my teammates Rohit, Ayush. इधर से आ जाओ तो बच्चे, हाँ दो बच्चे इधर। हाँ वो तो टाइमिंग भी आ रहा है। नहीं सर, क्या दिमाग लगा रही है? सही तो जाएगा। आप लोग इंट्रोडक्शन देते हुए चारों एक साथ अपनी सिचुएशन हो जाइए। और कैमरा मैन। Good morning, friends. I am Jivan Mishra along with my teammates Ayush, Saurabh, and Rohit, standing in front of you all to present our presentation on operating system. And we have got the topic as deadlock, and the topic to be discovered in this presentation is what is deadlock, condition for deadlock, third is deadlock avoidance, fourth is deadlock prevention, and fifth is deadlock recovery. So first is deadlock. Deadlock is a situation where a set of processes Basically, process blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other processes. Deadlock में ये होता है जैसे दो प्रोसेस है P1 and P2. P1 के पास R1 रिसोर्स है और P2 के पास R2 रिसोर्स है, और P1 को R2 का रिसोर्स का जरूरत है और P2 को R1 रिसोर्सेज का जरूरत है, लेकिन वो लोग होल्ड में रखते हैं, इससे दोनों प्रोसेसेस डेडलॉक में चल जाते हैं. So the next topic is condition for the deadlock, and here is Rohit to explain it. तो पहला जो मैं मुझको लेकर पूछा, तो इसमें होता है कि जैसे एक रिसोर्स है और वो दो प्रोसेस को चाहिए, जैसे कि एक प्रिंटर है और दो प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2 है और एक प्रिंटर है यहाँ पे. तो अगर ये लोकेटेड है P1 को, तो ये P2 का लोकेट नहीं हो सकता है, और क्योंकि अगर दोनों का लोकेट हो गया तो यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा. जैसे इसका 5 पेज प्रिंट हुआ, इसका 5 पेज प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे मिक्सअप हो गया, दोनों का वो नहीं होना चाहिए. इसके बाद जो है होल्ड एंड वेट, तो जैसे यहाँ पे कोई डाउट है मिस्टर एक्सक्लूजन में, एक प्रोसेस P1 है. क्या वही तो बोले कि अगर कुछ सेकंड के लिए इसको देंगे तो पहले इसका काम होगा, इससे 5 पेज निकलेगा,
फिर इसको क्या? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ये कर देगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब एट अ टाइम किसी को देना तो चाहिए। वही तो उसको फिर प्रिवेंशन में बनाएंगे। डेडलॉक का कंडीशन है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नन से अलग है, तो नन से अलग है। तो डेडलॉक का उसको अगर प्रिवेंट करना है तो उसको डेडलॉक प्रिवेंशन बताएंगे। फिर एक R1 प्रोसेस है, T2 प्रोसेस है और R2 है। ये R1 भी इसको एलोकेटेड है और T1 R2 के लिए डिमांड कर रहा है और R2 P2 को एलोकेटेड है और ये R1 के लिए डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो P1 है वो R1 को होल्ड किए हुए है और R2 के लिए डिमांड कर रहा है। और वही यहाँ पे सीन है कि जो R2 है P2 को एलोकेट है और R1 के लिए डिमांड कर रहा है। तो ये होल्ड एंड वेट का कंडीशन है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए दूसरे के लिए डिमांड कर रहा है। होल्ड एंड वेट में किसी को डाउट है? यहाँ पे नो प्रिंट वाला जो केस है, तो यहाँ पे भी जो R1 को P1 होल्ड किए हुए और R2 को ये डिमांड कर रहा है और जो P2 है वो R2 को होल्ड किए हुए है और R1 के लिए डिमांड कर रहा है। तो नो प्रिंट में क्या होता है कि अगर जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो वो उसको रिलीज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी वही होगा कि जब तक ये P1 जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा वो R1 को रिलीज नहीं कर सकता और P2 को मिलेगा नहीं। और क्या होल्ड एंड वेट में कि वो एक P1 होल्ड किया R1 पर और इसके लिए डिमांड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कि R1 होल्ड किया और जब तक कि P1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि R1 को छोड़ेगा नहीं, रिलीज नहीं करेगा। सीधा मतलब ये है कि कोई प्रोसेस अगर रिसोर्स को होल्ड किए हुए है तो जब वो उसको रिलीज ही नहीं करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसको रिलीज नहीं करेगा। और जो सर्कुलर रेट है इसमें अगर हम एक और एग्जांपल से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो R1 है वो P1 को एलोकेटेड है और R2 के लिए डिमांड कर रहा है। R2 है P2 को एलोकेटेड है और R3 के लिए डिमांड कर रहा है। R3 P3 को एलोकेटेड है और R1 जो ये R3 के लिए डिमांड कर रहा है P1। तो यहाँ पे जो सर्कुलर वेट कंडीशन है कि R1 P1 के लिए एलोकेटेड है और R2 के लिए डिमांड कर रहा है, R2 P2 को एलोकेटेड है और R3 के लिए डिमांड कर रहा है, R3 P3 को एलोकेटेड है और P1 के लिए डिमांड कर रहा है। तो ये जो है सर्कुलर वेट का कंडीशन है। तो इसके बाद नहीं समझ में अरे जो भी रिसोर्स होगा सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो R1 है P2 को मिल जाएगा। R1 जब भी मिलेगा वो R3 को मिलेगा। क्या जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को होल्ड करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, जिसके कारण ये और वो सर्कुलर फॉर्म में रुक जाता है, डेडलॉक होता है। इसके बाद है डेडलॉक अवॉइडेंस। Good morning, everyone. I will explain deadlock avoidance and deadlock preventions to all of you. But before moving with either of the topic, let's first discuss what is the difference between avoidance and prevention. So, in deadlock avoidance, deadlock avoidance is a mechanism in which we ensure that a resource will not go in unsafe state. And in deadlock prevention, we ensure that either of the any of the characteristic reasons for the deadlock will never occur. In deadlock prevention, we must have prior knowledge. We did not. In deadlock prevention, we do not really need to know the prior knowledge of all the resources, but in deadlock avoidance, we need the prior knowledge of the request made by the processes. And in deadlock prevention, all the requests are required at once. And in deadlock avoidance, we need the resources are manipulated until and unless the first safe path is found. So let's first talk about deadlock avoidance. So safe state means the
it is not a deadlock state. This is some sequence by which all requests can be satisfied. So in deadlock avoidance, we use Banker's algorithm to solve the problem of safe or unsafe state. सेफ स्टेट में जितने रिसोर्सेज जो भी होता है वो मतलब मैक्स जो अवेलेबल रिसोर्सेज होता है उससे कम रिक्वेस्ट होता है रिसोर्सेज का प्रोसेस के द्वारा, उसको सेफ स्टेट कहते हैं। आगे करो ना, एक ग्राफ होगा इससे दिखा। सो बैक Banker's algorithm बोल रहा है समझा रहा है तो इस बात को गंभीरता से समझो, एग्जाम में आ जाएगा फिर कहोगे क्लास में हुआ था गंभीर नहीं हुए। Banker's algorithm is used to make a sequence of the processes which are in safe state. So there are three information that we must have a prior knowledge to use Banker's algorithm. First, the allocated resources to the processes and the need of their resources and the available resources. We need these three inputs to execute Banker's algorithm. So here you can see that in there are three instances of resources A, B, C, and there are available two instances of a resource A and 3 instances of resource B. So if we start with P0, you can see that the need of P0 is 7, 4, 3. Which is more than that of available resources. So we will move to next process P1, and P1's need is 0 to 0, which is less than the available resource. So in the sequence, P1 will be the first process to execute, and after execution, this resource will release and for now the available resource is 2, 5, and 0. Now we'll move to the next process, the next request of the process. So here the need of resource A is 6, which is again greater than the रिक्वेस्ट का मतलब देखो, रिसोर्स का मतलब समझ रहे हो, मतलब आपके पास 4 CPU है, 3 पेन ड्राइव है, मतलब ये रिसोर्स के तौर पे है, और जो रिसोर्स आपका पहले से अवेलेबल है उसी पे तो आप काम कीजिएगा। उसी रिसोर्स में चलो। Now in this process 2, the requirement of in the resource A is 6, but available is only 2. So this will not execute. Again, we'll move to the next process. आपको डाउट हो रहा है Sir, एक छोटा सा करो sir, P3 or ये बढ़ा दो। इसमें क्या ठीक है, इसको बैंकर्स एल्गोरिथम है ना, मैं डिसाइड कर दूंगा बाद में, ठीक है बाद में बता दें, आगे चलो हम बता देंगे। So this is resource allocation graph. This graph explains the whole resource allocation to the processes. रिसोर्स एलोकेशन का मतलब समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस का मतलब आपका कोई भी काम आप एक वेबसाइट भी खोलते हो तो वो एक क्या है, वो एक अपने आप में एक प्रोसेस है। आप जावा में कोडिंग कर रहे हो, ओरेकल पे कर रहे हो, कुछ भी काम आप सिस्टम में कर रहे हो तो दैट इज ए प्रोसेस। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा तो उसको क्या चाहिए, रिसोर्स। जैसे आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हो, DRCC का फॉर्म भर रहे हो,
सिंपल सा एग्जांपल समझो, तो उसके लिए आपको फोटो चाहिए कि नहीं, कोई रिसोर्स है, आपका आधार नंबर चाहिए कि नहीं, कोई रिसोर्स है, पैन कार्ड चाहिए कि नहीं, रिसोर्स है, आपका 10th 12th का मार्कशीट चाहिए कि नहीं, वो रिसोर्स है, कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं कि नहीं, रिसोर्स है, सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है कि नहीं, रिसोर्स है, सब रिसोर्स ही है। Now, deadlock prevention. So I have already told you that in deadlock prevention, we ensure that any of the conditions that are required for deadlock will never occur in the in the algorithm. So in this process, in deadlock prevention, we eliminate any of the 4 required conditions for the deadlock. So to eliminate mutual exclusion, we just make a resource shareable so that deadlock can be prevented. But sometimes that mutual exclusion cannot because of some resources like printer are not shareable. So second one is hold and wait. To eliminate hold and wait, we allocate the resources prior to the execution. And no print. Third one is no print. To eliminate no print, we print the execution of the waiting process. We print the allocated resources of the waiting process and allocate it to the other process. And now the last one is circular wait. To stop it from happening, we numerically give numbers to all of the resources. Next. Next is deadlock recovery, and this will be explained by Saurabh. Good morning, everyone. My name is Saurabh Kumar, and my topic is deadlock recovery. So, as we know that we are aware with deadlock and what are the conditions for deadlock. Now, the question arises how we can recover from it. If we talk about deadlock recovery, it is the way through which we are monitoring our computer time to time from any deadlock condition, which may be monitoring by our OS and recover our system with the help of some approaches, some recovery approaches. There are 2 approaches. First one is process termination, and the second one is resource preemption. If we talk about process termination, so process termination is a technique through which we are going to release the CPU that is acquired by some other processes. So there are 2 techniques to avoid to recover from this process termination. The first one is avoid all the processes from a deadlock process. It means kill all process. It is the technique in which we are going to kill all the processes, but it generally happens when the very critical situation is happening in our computer. The second one is avoid one process. Second one is avoid one process at a time until the deadlock is eliminated. It means अवॉइड करने का मतलब समझ रहे हैं, अवॉइड प्रोसेस को बंद करना, जबरदस्ती, फोर्सफुली. it means kill one process. In this process, in this technique, we are going to kill one process, but sometimes it is difficult to find out which one of the process is going to kill. Now the second one is resource preemption. So resource preemption is a technique in which we are going to release the computer from or block the computer from deadlock condition. There are 2 approaches in this. First one is select a victim. Select a victim means we are going to preempt the process. Preempt means we are going to divide the time sharing or time slicing, or we can say that we are going to snatch the resources from the process which is required to the next other processes. Now the last one is rollback. So rollback is a part of resource preemption in which we are going to as we know that the system is going to many different type of states. There are 5 states as we know that. So rollback is going to commit all the status in which we are facing the deadlock condition, and that rollback is going to
going to prevent the system to went in safe state. So that's all. Thank you. Thank you. दिमाग में रह जाता है, बाद में नुकसान करता है। बैंकर एल्गोरिथम यूज होता है डेडलॉक से बचने के लिए। टाइम खत्म हो गया बोल रहा है। मैं थोड़ा सा करके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो परेशान हो जाओगे। बैंकर्स एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एलोकेशन पता होना चाहिए कि एलोकेटेड रिसोर्सेज क्या क्या है प्रोसेसेस में, फिर नीड पता होने चाहिए उनकी मैक्सिमम नीड्स क्या है, और अवेलेबल रिसोर्सेज का ये तीनों का इनपुट होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 2 कर देते हैं, 2 3 2 फर्स्ट प्रोसेस में जो P0 है एक बना लो बोर्ड पे, सुन लो, इम्पोर्टेंट चीज है ये बैंकर्स। बताना चाहिए 0 देखा P1 में लिखो 302, P2 फिर 302, 211, 002, नीड लिखो, नीड 743, 020, 600, 011, 431, available, 230. फिर मैं पूछ दूंगा किसी से ये क्वेश्चन अभी पूरा 5 मिनट के अंदर दोबारा, फिर परेशानी ये में आ सारे जाओगे। एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उन प्रोसेस को, और ये नीड्स है और ये अवेलेबल रिसोर्स है। तो फर्स्ट प्रोसेस में जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ नीड है 743 ABC तीनों रिसोर्सेज का, और अवेलेबल है 232, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा समझा लोगे आसानी से। जैसे रिसोर्स का मतलब ये होता है कि सीपीयू जो भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्स है, जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपका आधार कार्ड, फोन नंबर, जो भी आप उसके अंदर डाल रहे हो सब कुछ रिसोर्स है। उसके बाद कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, जो भी आपको प्रोसेस करने में काम करता है वो क्या है, रिसोर्स। आपका कीबोर्ड और माउस भी रिसोर्स है। तो यहाँ कितने प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है। ABC, ए का मतलब मान लो कीबोर्ड, बी का मतलब मान लो सीपीयू, सी का मतलब मान लो प्रिंटर। 3 रिसोर्स इन प्रोसेस को चाहिए। क्या है एलोकेटेड का मतलब जो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जा चुका है। जो एलोकेटेड का मतलब इनको इतना रिसोर्स, इस प्रोसेस को P0 को ये रिसोर्स दिया जा चुका है। मतलब ये अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड अभी 0 मिला है, सीपीयू अगर 1 है तो सीपीयू 1 मिला है, प्रिंटर 0 मिला है, जो भी रिसोर्स आप समझो। नीड मतलब ये पूरा काम जो प्रोसेस P0 का पूरा काम जो खत्म होगा वो 743 में होगा। इतना रिसोर्स मिलेगा तब इसका काम खत्म होगा, इसको भी इतना रिसोर्स मिलेगा तब काम खत्म होगा। इतना एलोकेट कर दिया है। कौन किया है, सीपीयू। कौन किया है, सीपीयू। और ये क्या है, अवेलेबल। इतना रिसोर्स अवेलेबल है और देना इतना है सबको। अवेलेबल कितना है, 232, उसी में सबको देना है, ये है ना। चलो समझ गए ना। चलिए आप कोई क्वेश्चन का आप राइट कीजिएगा। So P0 पहला उसका नीड है 743 और अवेलेबल है ओनली 232, तो ये इसको एलोकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि नीड इसका बहुत ज्यादा है और अवेलेबल कम है। तो हम लोग सेकंड प्रोसेस पे मूव करेंगे। इसका नीड है 020, एलोकेटेड इतना है और 020 हम लोग का नीड है, तो अवेलेबल 232 है। तो ये ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि इसको सिर्फ बी रिसोर्स का 2 पार्ट चाहिए,
तो बी यहाँ 3 है तो किया जा सकता है इसको। तो एलोकेट करने के बाद पी हम लोग का सीक्वेंस में सबसे पहले प्रोसेस आएगा। उसके बाद हम लोग का ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद रिलीज कर देगा इसको, जो भी इसका एलोकेटेड है रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ए में ऐड होगा तुम्हारा 3 2 और ये हो जाएगा 5, ये 3 2 5 ये भी हो जाएगा और ये 2 2 4। नाउ फिर हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे तो हम लोग का 6 0 0 ये होगा ना 5 0 4 होगा 5 5 4 0 है ना, एलोकेट 0 ही है ना। हाँ एलोकेट 0 रिलीज कर उसका छोड़ दो। फिर P2 में हम लोग का नीड है 6 0 0, ये कम है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करेंगे P3 में। P3 में हम लोग का B का 1 और C का 1 चाहिए जो कि अवेलेबल से कम है। तो कम है तो इसको हम लोग रिसोर्स एलोकेट कर देंगे और फिर इसके बाद ये रिलीज करेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का ये रिलीज जो एलोकेटेड मेमोरी है रिलीज हो जाएगा। फिर सम होके हो जाएगा 7 4 5। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे तो इसका नीड है 4 3 1 जो कि कम है। तो ये फिर आ जाएगा नेक्स्ट हम लोग का पार्ट में, नेक्स्ट सीक्वेंस में नेक्स्ट आ जाएगा और ये ऐड हो जाएगा एलोकेटेड। फिर 7 4 7। फिर हम लोग का सीक्वेंस पे फिर ऊपर से जाएगा तो P1 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया और अभी हम लोग का P0 और P2 बाकी है। तो फिर हम लोग P0 में जाएंगे तो यहाँ 7 4 3 था नीड और अवेलेबल 7 4 7 है तो एलोकेट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट होने के बाद इसको रिलीज कर देगा। फिर हो जाएगा 7 5 7 ये हो जाएगा हम लोग का अवेलेबल और लास्ट हम लोग का बच गया P2। तो P2 में नीड 6 ही है। फिर उसको ये अवेलेबल से कम है तो उसको एलोकेट कर देगा और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम लोग का फाइनल सीक्वेंस ये आएगा। मतलब ये क्या किया कि जिसको लेवल के हिसाब से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते गया, उसके बाद क्या हुआ रिसोर्स जिसको मिलता गया उसको रिलीज कराता गया। जिसका काम खत्म होगा उसको रिसोर्स क्यों दोगे? मान लेते हैं MS वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, MS वर्ड आपका मेमोरी ले रखा है, CPU ले रखा है, काम खत्म उसको बंद किए तो जो रिसोर्स वो ले रखा था फिर MS एक्सेल खोले उसको मिल जाएगा कि नहीं, पावर पॉइंट खोले उसको मिलेगा कि नहीं। तो रिसोर्स को फ्री करते गया और काम हो गया। ठीक है, और हम नेक्स्ट में ग्रुप बना देंगे और जो बच्चे टॉस कमांड हम बताएंगे खुद से, बाकी हम ग्रुप बना देंगे कि ग्रुप के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब टॉपिक का, जैसे बैंकर्स इस बच्चियों ने बताया पेजिंग और सेगमेंटेशन, इस ग्रुप ने बताया डेडलॉक में। लेकिन एक कंडीशन अभी भी क्लियर नहीं है लोगों को, जो हम चेहरे से लग रहा था, सर्कुलर बेट में बच्चे कंफ्यूज हैं। होल्ड एंड बेट में बच्चों को क्लियर था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्लियर था, नो प्रिम्पशन क्लियर था, सर्कुलर बेट में बच्चे डाउट में थे। तो सर्कुलर बेट को फिर से हम एक बार बता देंगे और बैंकर्स एल्गोरिथम उसने जो बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन और एक बार ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पे हम बता देंगे और ग्रुप बना देंगे। ग्रुप के बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंटेशन करवा लेंगे, जो टॉपिक्स है 2-3-4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, पेजिंग सेगमेंटेशन में जो डाउट था बहुत हद तक डाउट आप लोग का खत्म हुआ होगा। कंटेंट भी शेयर कर सकते हो, जैसे बैंकर्स एल्गोरिथम तुमने बताया, तुम अपने ग्रुप में जो बच्चों का ग्रुप है उसमें शेयर करो। तो पढ़ाई लिखाई शेयर करने में कोई बुराई थोड़ी है। कहा गया जीवन पेजिंग सेगमेंटेशन का जो आपको सुनिए, पेजिंग सेगमेंटेशन जो बनाए बच्चों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे। हम लोग के पास ग्रुप का ऑथेंटिसिटी है। हाँ वो लोग वाला भी, हाँ लेकिन आप लोग पेजिंग सेगमेंटेशन किए थोड़ा और उसको पढ़िएगा
डिमांड, पेजिंग, ये सब थोड़ा पढ़ के आप चाहेंगे कि एक बार और दीजिए, ताकि जो भी आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाए। आपको भेज देगा, हम भेज देंगे।